Welcome to the Trading Army Rulebook session at AISM. Kindly follow the session rules and reach out to us on our help desk to get further support on the sessions. The reason we have named this as our Trading Army Rulebook is simply because you will find a lot of similarities between a trader and a soldier. Trading is very much similar to army practice. I know, this may sound strange to you, but we have a lot of points to discuss today in our Traders Army Rulebook. ट्रेडिंग और आर्मी जैसे दो अलग अलग प्रोफेशंस में भी आपको बहुत सी समानताएं देखने को मिलेंगी और आप सीखने वाले हो कि एज अ ट्रेडर कैसे आप एक सोल्जर मेंटालिटी के साथ मार्केट्स में जीत सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. Starting with controlling the emotions. If you are getting trained in army to fight a war, you will have to become an emotionless machine. And same goes with the day trading as well, where if you master the skill of controlling your emotions, nothing can beat you. जैसे एक सोल्जर को उसकी ट्रेनिंग के दौरान एक इमोशनलेस मशीन बनाया जाता है ताकि वो जंग के वक्त दुश्मन सैनिक को मारने से पीछे ना हटे, ठीक वैसे ही आप अगर डे ट्रेडिंग में अपने आप को एक इमोशनलेस मशीन बनाकर ट्रेड करते हैं तो यकीनन आप एक बेहतर ट्रेडर बनेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, लर्निंग टू ट्रेड इज नॉट द टफेस्ट टास्क, कंट्रोलिंग योर इमोशंस इज. विद दैट बीइंग सेड, let's try to understand how you can become a sniper shooter in the markets. Trading like a sniper shooter. If you have ever seen snipers in movies, you might have noticed that for a single shot, a sniper soldier will wait for hours and with 100% confirmation on the target, he will shoot. While holding his breath, he will make you realize that he has actually waited for that moment with a lot of patience. This practice simply teaches us that it is not important to execute something at all the times, but to execute accurately is the key. If you are really not sure about a trade you wish to enter, cancel the plan and wait for the perfect moment to trade. Full-time day trading doesn't mean that you have to trade whole day. अक्सर नए लोग मार्केट्स में सारा दिन ओवर ट्रेडिंग के बाद ये रियलाइज़ करते हैं कि बेहतर होता अगर वे सिर्फ एक ही सही ट्रेड लेते और निकल जाते. जैसे एक स्नाइपर राइफल से शूट करने वाला सोल्जर घंटों इंतज़ार करता है सही मौके का शूट करने के लिए, वैसे ही आपको एज अ ट्रेडर मार्केट में इंतज़ार करना है उस सही अपॉर्चुनिटी का जो परफेक्ट टाइमिंग के साथ आपको एक परफेक्ट रिजल्ट देगी. सो ऑलवेज हैव पेशेंस टू वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड शूट और ट्रेड व्हेन यू आर श्योर एंड योर स्ट्रैटेजी और सेटअप इज सपोर्टिंग योर डिसीजन. आफ्टर ऑल, इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी. We follow hierarchy in army or in military. In army, we have hierarchy of posts like divisions, sections, platoons, battalions, brigades, and each of them are different based on their skills and experiences. In the same way, we have a certain hierarchy in trading from amateur to pro traders. Now, in order to follow this hierarchy or in order to reach at the top level of this hierarchy, in order to become officer from a soldier, you have to follow some certain rules. First of all, it's not all easy to make million here. A lot of people come here with a mentality that they will make a lot of money. उनको बाज़ार में बहुत सारा पैसा easily मिल जाएगा. ये एक मनी मेकिंग मशीन है. यहाँ लोग पैसा छाप सकते हैं, यहाँ लोग बहुत easily पैसा बना सकते हैं. लेकिन ये complete reality नहीं है इस मार्केट की. If you are someone who is coming with that kind of mentality, you will never be on top of that hierarchy. अगर आपको एक एमेच्योर ट्रेडर से प्रो ट्रेडर की उस हिरार्की में टॉप पर पहुंचना है तो आपको ये मेंटालिटी कम्प्लीटली वैनिश करनी है और ये सोचना है कि मार्केट एक ज़रिया है जहां आप अपने पैसे को सही तरह से लेवरेज करके सही रिटर्न्स निकाल सकते हो, ना कि यहाँ पर आप मिलियंस बना सकते हो रातों रात. थिंग्स टेक टाइम्स. इफ़ यू आर एन आर्मी और इफ़ यू आर अ सोल्जर, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ रैंक कॉल्ड लैंस नायक और अ सिपाही, एंड इन ऑर्डर टू बिकम अ ब्रिगेडियर or a colonel in army, to reach at that level, you have to do a lot of hard work. You have to fight a lot of wars. You have to transfer yourself to a lot of different locations. आपको बहुत सारी अलग अलग जगहों पे काम करना होगा. आपको बहुत सारे अलग अलग टास्क में अपने आप को प्रूव करना होगा और उसके साथ आपको एक प्रमोशन मिलेगा और तब जाकर आप एक सोल्जर से ऑफिसर लेवल की रैंक तक पहुंच पाएंगे. उसी तरह अगर आप उतना टाइम स्पेंड करते हैं मार्केट्स में, अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप पर उस तरीके से फोकस करते हैं जिस तरीके से एक सोल्जर फोकस करता है अपने करियर में, तो यकीनन आप एक एमेच्योर से प्रो ट्रेडर बनेंगे. लेकिन उस पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा. तो थिंग्स टेक टाइम और आपको वो टाइम देना होगा अपने लिए
अपने इस प्रोफेशन के लिए, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच पाओ। हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं स्किप किया जा सकता। एक सोल्जर को भी उतना ही हार्डवर्क करना है फील्ड में, और एक ट्रेडर को भी हार्डवर्क करना है अपनी स्क्रीन के सामने। और ये दोनों टाइप का हार्डवर्क अगर कंसिस्टेंसी से किया जाए तो इससे बेहतर रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हार्डवर्क एक ऐसी चीज़ है मार्केट में जो आपको ये सिखाएगी कि जब जब मैं रिज़ल्ट लाने के लिए अपने एफर्ट्स दे रहा हूँ तब तब मुझे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, और ये प्रोसेस है रिज़ल्ट्स को लाने की। तो आपके पास में एक सही डायरेक्शन होगी, एक क्लियर व्यू होगा, और आपके पास में एग्जीक्यूशन के लिए प्लान होगा जब आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे। सेम गोज़ विथ अ सोल्जर इन आर्मी फील्ड्स। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू हैव दैट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड पैशन टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। जिस तरह एक सोल्जर कंप्लीटली मोटिवेटेड होता है, हाईली मोटिवेटेड होता है अपने काम को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, एक सोल्जर इस बात को समझते हुए भी कि उसकी जान का उसे हर पल खतरा है, वो फिर भी चूज़ करता है कि वो बॉर्डर पर तैनात रहे, और उस डेडिकेशन और उस पैशन के साथ में वो अपनी ड्यूटी को, अपने प्रोफेशन को फॉलो करता है। तो अगर उस तरह का डेडिकेशन और प्रोफेशन आप अपने ट्रेडिंग करियर में लेके आते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप बेहतर ट्रेडर बनने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे। गाइडेंस एंड एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक अ immature guy or a boy comes into army training camp and वहाँ वो एक बॉय से एक सोल्जर बनता है और समझता है कि कैसे उसे फील्ड में रिएक्ट करना है और सर्वाइव करना है। उस गाइडेंस में रहते हुए, उस ट्रेनिंग पीरियड में रहते हुए वह अपने आप को देखता है कि वो अपना पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर रहा है, अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ्स को एक्सपीरियंस करता है। और वो सब तभी होता है जब वो एक गाइडेड एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, जहाँ उसके साथ में हर वक्त उसके मेंटोर्स, उसके टीचर्स, उसके फिजिकल ट्रेनर्स, उसके मेंटल ट्रेनर्स, उसके वेपन ट्रेनर्स रहते हैं, और उस गाइडेंस और एक्सपीरियंस के साथ में वो बढ़ते हुए एक प्रॉपर सोल्जर बन पाता है। ठीक इसी तरह अगर आप सही गाइडेंस और एक्सपीरियंस के साथ में आगे बढ़ते हैं तो आप एक बेहतर ट्रेडर बनेंगे और अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और इन्हांस करें। Always remember, stock market is the most difficult way to make easy money. It is being very well said that a lot of people think that it is the easiest way or the easiest place to make money. But the fact is, it is the most difficult profession to make money in this easy platform. Obviously, stock market is an easy platform to make money, but the process of making that money is really hard. तो लोगों को लगता ज़रूर होगा कि स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहां आसानी से पैसे बन सकते हैं, लेकिन वो इस फैक्ट को हमेशा भूल जाते हैं कि इस आसान पैसे को बनाने के पीछे बहुत भारी और मुश्किल मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और वही मेहनती लोग इस मुश्किल पेशे में भी आसानी से पैसा बना पाते हैं। डिवाइड एंड रूल। आर्मी स्ट्रांगली बिलीव्स इन डिवाइडिंग एंड डिप्लॉइंग देयर रिसोर्सेज इन अ वॉर जोन. You will never find a commander sending all of his troops towards a single location to attack. Just like that soldier, you have to divide your capital in a way that it minimizes the overall risk at different spaces. And we always recommend it to our AISM family members to divide your capital into 10 to 20 parts and at a time risk in only one part of it. जैसे एक बटालियन एक ही दिशा में एक साथ अटैक नहीं करती है, उसी तरह आपको भी अपने कैपिटल को एक ही जगह इन्वेस्ट करके अपने रिस्क को नहीं बढ़ाना है। आप अपने कैपिटल को जितना ज़्यादा डिवाइड करके इन्वेस्ट करेंगे उतना ही रिस्क कम होगा। और हम अपनी AISM फैमिली को हमेशा यही रिकमेंड करेंगे कि अपने कैपिटल को 10 से 20 टुकड़ों के भाग में बांट कर रखें और केवल एक हिस्से को ही एक समय पर रिस्क में डालें। ऑलवेज हैव अ प्लान. There is a popular saying in military that make time for planning, wars are won in the general tent. जैसे बिना प्लान के एक सोल्जर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, वैसे ही एक ट्रेडर के पास बिना प्लान के कोई डायरेक्शन नहीं होगी, और इस तरह वो ट्रेडर बस अपना कैपिटल बर्बाद करके मार्केट से निकल जाएगा। एक ट्रेडिंग प्लान के साथ अपने विजन्स रखिए और मेक श्योर कीजिए कि आप उस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, और याद रखिए हर स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है अगर आप उसमें लंबे समय तक प्रयास करते हैं और उसी पर डटे रहते हैं। And now let's understand how can you avoid revenge trading in the markets. When you continuously face losing trades in the markets, you tend to become aggressive, and in that anger, you will take more wrong trades. So it's better you take a pause for a few days to remove all that negative fog in your mind and come back strong with a better trading plan. Basically, your previous trade should not affect your current trade. We have seen people in stock market who start with 10,000 and end up losing 1 lakh
and the only reason is revenge trading. And there is a very wise saying by Sir Richard Rhodes where he talks about taking pause from trading for few days so that your mind cannot play games anymore. लगातार मार्केट में हारने के बाद आपको ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि अब आप एक आखिरी ट्रेड करके अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर लोगे, लेकिन वो आखिरी ट्रेड आपका हमेशा के लिए आखिरी ट्रेड भी बन सकता है। आप अगर लॉसेस को बुक करने के बाद भी अग्रेसिवली ट्रेड करते हो तो आप अब रिवेंज ट्रेडिंग के ट्रैप में फंस जाओगे और लॉसेस को रिकवर करने के प्रोसेस में और ज़्यादा लॉसेस कर बैठोगे। ऐसी सिचुएशंस में बेहतर है कि आप अपने आप को ट्रेडिंग से कुछ दिनों के लिए दूर रखें और एक फ्रेश माइंड के साथ पिछली गलतियों को ना दोहराते हुए एक नई शुरुआत करें। अटैकिंग विद एज। An army do not attack unless they have some edge over the opponent and the same rule applies for trading. एक सेना तब तक हमला नहीं करती जब तक कि उसके पास प्रतिद्वंदी पर संकेत ना हो, और ऐसे ही संकेत आपको बाजार में समय बिताने पर मिलेंगे जो आपको एक सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। The bull market edge will give you opportunities to buy stocks and the bear market edge will help you in selling the stocks. You must not trade when the market is uncertain because you cannot have an edge in such kind of market conditions. Remember, you are a trader, not a speculator or a gambler. So trade only when there are opportunities. And now we'll have a look on our other general rules to be followed. Avoid overtrading. The moment you realize that by just placing a lot of orders, you will end up by filling up the pockets of your broker and you will have to always pay more brokerage and charges than your profits in the longer run. It is just like overboozing and then spitting everything out. इस बात को समझिए कि ज़्यादा ट्रेड करने से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बल्कि ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। इनफैक्ट आपका सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप इस बेसिक से रूल को इग्नोर करते हो तो। And never follow the crowd. Understand the fact that markets are very obvious traps for the general crowd. If you wish to succeed in the markets, you have to do the opposite of what general public is doing. That way you will realize how actual trading happens and how it can be so powerful with a less ordinary mindset. Markets कभी भी साधारण लोगों को rewards नहीं देते हैं जो भीड़ की तरह सोचते हैं और ट्रेड करते हैं। अगर आपको मार्केट के विनिंग 5% लोगों में होना है तो आज ही 95% लोगों जैसे सोचना बंद करना होगा और समझना होगा कि कैसे उन सभी सोर्सेस को अवॉइड करना है जहां जनरल पब्लिक को टारगेट करके पैनिक बाइंग या सेलिंग करवाई जाती है। तो इस तरह के सभी ट्रैप्स को अवॉइड कीजिए जो क्राउड को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और अपने आप को सोचने पर मजबूर कीजिए कि कैसे आप भीड़ से अलग चल सकते हैं। एंड बी पेशेंट। देखिए, धैर्य होना ना केवल आपके ट्रेडिंग करियर में बल्कि आपके साधारण जीवन में भी आपकी बेहद मदद करने वाला है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो लोग जल्दबाजी में बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं और एंट्रीज और एग्जिट्स को लेने की कोशिश करते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा लॉसेस बुक करते हैं और इस प्रक्रिया में ज़्यादा लॉसेस बुक करने की वजह से वे और ज़्यादा अग्रेशन के साथ ट्रेड करते हैं और ज़्यादा पेशेंसलेस ट्रेडर बन जाते हैं। So it's better that you sit back, relax, keep the temptation away from trading and have a great deal of patience. Cut your losses early. Basically, a lot of people have this habit of holding the losing trades. This will keep you in losses always because it's very simple. If you have entered into a losing trade and if you are expecting market to move in your favor and to provide you the profitability on that losing trade, you will always end up in being losses. Just accept the mistake, book the loss, get out of the trade and wait for the another opportunity. The opportunities are never ending in the markets. It is the matter of fact that a lot of people do not understand to protect their capital and they do not get out of the losing trades and they end up with losing all the capital they have. And once you lose the entire capital, you do not even have a single chance to trade again in the market. So it is better that you cut down your losses early और आप सही समय पर एक लूजिंग ट्रेड से बाहर निकलें और अपने कैपिटल को पहले प्रोटेक्ट करें बजाय ये सोचने के कि मेरा जो ट्रेड है वो लॉस में कैसे हो गया, अब मुझे उस पर एक प्रॉफिट चाहिए। अगर वो प्रॉफिट में नहीं आ रहा है तो आप ज़बरदस्ती उस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं ला सकते। आपको ये समझना होगा कि मार्केट कभी भी आपके सेंटिमेंट्स और आपके फेवर्स में नहीं मूव करने वाला है और आपको अगर एक
ट्रेड में साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई स्कोप नहीं है, तो आप किसी के भी भरोसे मत बैठिए और आप ऐसा मत सोचिए कि मार्केट सडनली कोई मूव देगा और वो मूव आपके फेवर में आके आपको प्रॉफिट्स देगा। इसी मेंटालिटी के साथ बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे नए ट्रेडर्स स्पेशली मार्केट में ऐसे ट्रेड्स को लेकर बहुत दिनों तक इवन होल्ड करते हैं। स्पेशली जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वहाँ बहुत सारा प्रीमियम डिके हो चुका होता है, उसके बावजूद भी लोग उन ट्रेड्स को लेकर इस उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं कि कभी मार्केट में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंट आएगा उनके फेवर में और उनके जो प्रीमियम्स है वो बढ़कर उनको प्रॉफिट दे देंगे। ऐसा कभी किसी मार्केट में नहीं होता है। सो इट इज़ बेटर दैट यू ऑलवेज कट डाउन योर लूजिंग ट्रेड्स एज सून एज पॉसिबल, because in the end it will become a bigger financial disaster, and it is better that you end up with having a small loss than ending the entire capital. And never rely too much on the tools. It is observed that so many traders try to simply complicate the process of trading by including things like indicators, quick news alerting tools, and algorithms. Try to understand that the more you keep the process of trading simple, more it will make sense to you. Using tools that fit well with your trading plan is great, but relying on it completely is going to harm you in the longer run. Instead, you can use these tools to just get an additional confirmation on your decisions in the market. And please do take care of your mental peace. It is as important as your trading capital. Be calm and confident, have peace in your heart and mind, and be focused and determined when you are trading. If you lose your financial capital, you may work and get it back. But if you lose your mental peace, you're out of the game. And while trading with fear and doubts, you will be in more losses and you will degrade your willpower. So just focus on the process and everything will happen correctly. You might fall into a vicious cycle and your mind will make a way to more fears and doubts. In such cases, it is highly recommended that you practice things like yoga and meditation to keep yourself calm and stable in the markets. देखिए, इस बात को याद रखें कि मार्केट में हार जीत का ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अगर आप अपने पीस ऑफ माइंड को दांव पर लगाकर इस प्रोफेशन में आते हैं तो यकीन मानिए इस नुकसान की भरपाई आप उम्र भर नहीं कर पाएंगे। खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ मेंटल पीस वापस लाना बेहद मुश्किल है। तो अपने कैपिटल और अपने माइंडसेट की सेहत का ख्याल रखिए और मार्केट्स को एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, और ये बिजनेस केवल 10 में से 6 बार सही होने पर भी आपको रिवॉर्ड्स देंगे। परफेक्ट ट्रेडर बनने के ख्याल को एक पल के लिए भूल जाइए और इस बात को अपनाइए कि मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल है और इस प्रोफेशन में आपको बहुत बार हार का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बावजूद केवल यही एक प्रोफेशन है जहां आपको बिना किसी फैक्ट्री, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के एक कंप्लीट बिजनेस का एक्सपीरियंस मिल सकता है। सो विद दैट बीइंग सेड, I would like to share a bonus with you in this session on the 24 rules of W.D. Gann. Sir W.D. Gann was a great analyst and a genius mathematician who will help you to look at the markets in a complete different way. The Gann rulebook will be exclusively available for you in the AISM app under the study material, so you can go and explore the beautiful rules of W.D. Gann. आप सभी इन नियमों का पालन करते हुए एक दृढ़ सैनिक की तरह एक सफल ट्रेडर बने, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे अगले सेशन में मिलने की कामना करता हूँ।